Good afternoon, everyone. As you are knowing that the chapter nationalism in India is going on. In this chapter, yesterday you have studied that what was the how the different people participate in civil disobedience movement, and in which you have studied about the what about the thinking about rich peasants. What was the thinking about the rich peasants in this rich peasant uh, in this moment, and what they want. After that, you have studied about the poor peasants. Then you have studied about the industries, and at last you have studied about that about you have studied about the participation of women and what was the thinking of Mahatma Gandhi for the women. What were their mentality for the women? So today we are going to discuss about the limit of civil disobedience movement. What was the limit of civil disobedience movement? Yes, this is the very important questions in your exam. That what is the limit of civil disobedience movement? It means that who do not who did not participated in this movement, कि कौन कौन लोगों ने इस मूवमेंट में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया. Not all social groups were moved by the strict concept of Swaraj. One such group was the nation's untouchables, who from around the 1930 and began to call themselves Dalit or Abridged. For long, the Congress had ignored the Dalit. The fear of offending the Santanis, the conservative high-class Hindus, but Mahatma Gandhi declared that Swaraj would not come for 100 years if untouchable was not eliminated. He called the untouchable Harijans. Yes, the group which has not participated in this movement, that group was untouchables. That group was untouchables, जिसको untouchable कहा जाता था, and they call themselves Dalit और oppressed. बहुत समय तक कांग्रेस को अक्सर ब्राह्मणों की पार्टी कही जाती थी. तो बहुत समय तक कांग्रेस इन अप्रेस क्लास को, इन दलितों को इग्नोर किया. लेकिन जब महात्मा गांधी इस डर से कि जो उनके कांग्रेस के अंदर जो हाई कास्ट हिंदूज है, जो कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज है, जिन्हें सनातनीज कहा जाता था, वो इसका विरोध करेंगे. बट महात्मा गांधी declared that the Swaraj would not come. Swaraj could not be achieved before eliminating this untouchability. तो उन्होंने कहा कि स्वराज तब तक नहीं आएगा, 100 सालों तक स्वराज नहीं आएगा जब अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट नहीं किया जाएगा. He called the untouchables हरिजन. वो हरिजन नाम दिए इन अनटचेबल्स को. हरि मीन्स गॉड, सन मीन्स जन मीन्स सन, यानी कि सन ऑफ गॉड का उन्होंने दिया. हरिजन और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड organized satyagraha to secure them entry into temple and access to public well, tanks, road and school. He himself cleaned toilet to dignify the work for the bhangi, the sweeper, and the persuaded upper caste to change their heart and give up the sin of untouchability. उन्होंने सत्याग्रह लाया ताकि ये जो डिप्रेस क्लास है, ये जो दलित वर्ग है, उन्हें हर पब्लिक प्लेस पे एंट्री मिल सके, चाहे वो टेम्पल हो, चाहे वो टैंक हो, रोड्स हो, स्कूल हो, कहीं पर उन्हें जाने से कोई प्रतिबंध
नहीं लगाया जाए, और उन्होंने इसके लिए खुद से टॉयलेट अपनी साफ करते थे ताकि इन लोगों की डिग्निटी को बनाकर रखा जा सके। वो लोगों से, अपर कास्ट के लोगों से कहते थे कि वो अपनी मेंटलिटी को चेंज करें, और जो अनटचेबिलिटी का जो लोग भेदभाव कर रहे हैं, जो इसका अपराध कर रहे हैं, उसे वो छोड़ दें। But many Dalit leaders were keen on a different political solution to the problem of the community. They began organizing themselves, demanding reserved seats in the educational institution and a separate electorate that would choose Dalit members for legislative councils. बहुत सारे दलित लीडर्स जो थे वो एक अलग ही सॉल्यूशन खोज रहे थे। महात्मा गांधी उनको समान दर्जा देना चाह रहे थे, लेकिन दलित दलित जो थे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे, और वो चाहते थे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनका सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, और उससे सिर्फ दलित मेंबर का चुनाव होना चाहिए, और दलित मेंबर जो है वो लेजिस्लेटिव एस्पॉन्सेस में पार्टिसिपेट करें। देखो बच्चों, एक चीज है कि यहाँ पे सेपरेट इलेक्ट्रोड और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, दोनों में डिफरेंस है। सेपरेट इलेक्ट्रोड का मतलब कि कुछ एरिया ही उनको दे दिया जाए, और महात्मा गांधी इसके सपोर्ट में नहीं थे। उन्होंने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के सपोर्ट में थे, जहां पर कैंडिडेट तो दलित खड़े होंगे, लेकिन जो जो वोटर्स होंगे वो सारे लोग होंगे। लेकिन सेपरेट इलेक्ट्रोड का मतलब था कि दलित वर्ग ही अलग हो जाएं, और वो अलग जगह से खड़े हो, उनको उन लोग चुने, और वो जाकर लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेट करें। So political empowerment they believe would resolve the problem of their social disabilities. दलित वर्ग को लगता था कि उन्हें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उनमें आए, और जब पॉलिटिकल पावर एम्पावरमेंट उनमें आएगा, जब वे शासन में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तब जाकर के उनके प्रॉब्लम्स का, उनके सामाजिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। सो Dalit participation in the civil disobedience movement was therefore limited, particularly in the Maharashtra and Nagpur region where their organization was quite strong. इसलिए अगर लिमिटेशन आएगा तो आप इसमें लिख सकते हो कि दलित कम्युनिटी का जो था वो पार्टिसिपेशन लिमिट था। लिमिटेशन में आपको लिखना होगा कि किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, तो दलित लोग जो थे, क्योंकि दे फील दैट दे आर अप्रेस्ड क्लास एंड दे वर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम ड्यू टू अनटचेबिलिटी वाज प्रेजेंट, तो वो चाहते थे कि उन्हें बहुत कुछ उन्हें मिले, वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, सेपरेट इलेक्टोरेट हो जहां से दलित मेंबर चुने जाए, लेजिस्लेटिव असेंबली के वो मेंबर बने, और जब उनमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आ जाएगा तो समाज में जो उनके साथ डिफरेंसेस हो रहे हैं वो डिफरेंसेस को खत्म किए जा सकते हैं। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स जो था महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में काफी स्ट्रॉन्ग, मतलब यहाँ पे इन लोग काफी स्ट्रॉन्ग थे, यानी बहुत ज्यादा संख्या में थे। तो यहाँ पर के लोगों ने बेसिकली दलित ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। आगे देखिए, आप जानते हो कि बी आर अम्बेडकर जो थे, ही वाज इन द फेवर ऑफ डिप्रेस क्लास, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन 1930 में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑर्गेनाइज द दलित into the depressed class association in 1930. Class with Mahatma Gandhi at the second round table conference by demanding separate electorates for Dalit. और आपको मैंने बताया था कि only सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी पार्टिसिपेट किए। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब वो गए थे तो वहां उनकी टकराहट जो हो गई थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से हो गई थी, क्योंकि बी आर अम्बेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे, जबकि महात्मा गांधी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहते थे। बिकॉज आप जानते हो कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज ऑलवेज बिलीव इन अंग्रेज जो थे वो किसी में बिलीव करते थे, अंग्रेज बिलीव करते थे डिवाइड एंड रूल। और अगर मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे हैं या दलित सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे हैं तो इंडिया को टुकड़े टुकड़े में बंटने की संभावना थी। इसलिए महात्मा गांधी इसका विरोध कर रहे थे, और इसी चीज को लेकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच सेकेंड राउंड टेबल
कॉन्फ्रेंस में क्लासेस हो गए। When the British government conceded Ambedkar's demand, गांधी जी began a fast unto death। और जब अंग्रेजों ने अम्बेडकर की डिमांड को मान लिया तो महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए। He believed the separate electorates for Dalits would slow down the process of their integration into society. Ambedkar ultimately accepted Gandhi's position, and the result was the Pune Pact of this September 1932। ठीक है। उसके बाद उन्हें लग रहा था कि वो जो देश के लिए, समाज के इंटीग्रेशन के लिए यह सही नहीं है। अगर वो, क्योंकि अगर वो अलग अलग, अंग्रेज तो चाहते ही थे कि वो सबको अलग अलग भागों में बांट दे। अगर वो अलग अलग भागों में बांटेंगे तो कंट्री को कभी यूनाइट नहीं किया जा सकेगा, कभी भी स्वतंत्र नहीं कराया जा सकेगा। महात्मा गांधी इस चीज को महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने उनकी बातों को, जब अंग्रेज तैयार हो गए सेपरेट इलेक्ट्रोड के लिए, तो अम्बेडकर जो थे वो, महात्मा गांधी जो थे वो अनशन पर बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठ गए। अंत में महात्मा गांधी ने गांधी जी के पोजीशन को एक्सेप्ट किया और उसी का रिजल्ट था 1932 का पूना पैक्ट। सितंबर 1932 में दोनों के बीच पूना पैक्ट साइन हुआ। It gave the depressed class, latter to be known as scheduled caste, reserved seat in provincial and central legislative councils, but they were to be voted in by the general electorate. The Dalit movement, however, continued to be apprehensive of the Congress-led national movements. उसके बाद पूना पैक्ट के अनुसार कि अब जो सीटें थी दैट वो डिप्रेस क्लास, जिसको आज के डेट में हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उनके लिए सीट रिजर्व कर दी गई प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन जो वोटर्स है वो जनरल होंगे। इट मींस दैट each and every person from that particular place will cast the vote in the favor of these people, scheduled caste। शेड्यूल कास्ट के फेवर में सारे लोग वोट करेंगे, इसलिए कहा है कि देयर शुड बी जनरल इलेक्टोरेट। द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यूड टू बी एप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट। लेकिन कह रहे कि फिर भी दलित मूवमेंट जो थे वो कांग्रेस के मूवमेंट के साथ वो बहुत अभी भी वो अप्रीहेंसिव ही रहा, उसके मन में मतलब शक ही रहा, आशंकाएं रही, और वो उस मूवमेंट में ढंग से शामिल नहीं हुआ। सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया वर आल्सो lukewarm in the response of civil disobedience movement। दूसरा आप लिमिटेशन देख रहे, एक आपने देखा दलित का, दूसरा जो लिमिटेशन है वो है मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के प्रति बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहे, इनका झुकाव नहीं रहा। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम felt alienated from the Congress from the mid-1920s. The Congress came to be more visually associated with openly Hindu religious nationalist group like the Hindu Mahasabha। तो कह रहे कि जब इसका रीजन क्या था कि नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के डिक्लाइन होने के बाद मुस्लिम जो थे वो अपने आप को कांग्रेस से अलग थलग महसूस करने लगे, क्योंकि मिड 1920s में कांग्रेस जो थे वो हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप के साथ जुड़ गई थी, और वो ग्रुप था हिंदू महासभा। ठीक है, तो अब उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं से ज्यादा जुड़ रही है, इसलिए मुस्लिम जो थे वो अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगे। एज रिलेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम वर्सन, ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशन विथ militant fervor, provoking Hindu-Muslim communal clashes and riot in various cities. Every riot depend the distance between the two community। अब क्या हुआ, दोनों ही हिंदू और मुस्लिम के रिलेशन धीरे धीरे और खराब होते चले गए। हर कम्युनिटी अपना जुलूस निकालता था, एक दूसरे से टकराते थे, क्लासेस होता था, राइट होता था, और हर राइट जो है वो दोनों ही कम्युनिटी के बीच के डिफरेंसेस को बढ़ा देता था। The Congress and the Muslim League made efforts to renegotiate an alliance, and in 1927 it appeared that such a unity could be forged. The important differences were over the question of representation in the future assembly that were to be elected। कांग्रेस और मुस्लिम लीग बाद में इन लोगों ने प्रयास किया कि वापस में उन्हें रीनिगोशिएशन होना चाहिए, वापस में फिर से उनको शांति वार्ता करनी चाहिए, एक अलायंस का फॉर्मेशन होना चाहिए। और इन 1927 में
उनकी ये यूनिटी देखी भी गई। ठीक है, और इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस जो था वो रिप्रेजेंटेशन को लेकर था, जो कि खत्म हो गया था। इसमें क्या हुआ था कि उनको फ्यूचर असेंबली में उनके लिए रिप्रेजेंटेशन की बातें कर दी गई। मतलब आपको भी जैसे कि दलित को सीट मिला है, वैसे कुछ जगहों पर भी मुस्लिम्स को भी मिलेगा, और मुस्लिम कैन कैंडिडेट स्टैंड ओवर देयर एंड द पीपल विल elect them। तो उनके लिए भी असेंबली रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना, one of the leader of Muslim League, was willing to give up the demand for separate electorate. If Muslim were assured reserved seat in the Central Assembly and representation in the proportion to population in the Muslim-dominated provinces, Bengal and Punjab, so लेकिन कह रहे कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का एक लीडर थे, और उनका डिमांड था कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। अगर मुस्लिम को अपने सेंट्रल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन एश्योर हो जाता है, खासकर वैसे एरिया में जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, जिसमें बंगाल और पंजाब जैसे एरिया में, वो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे मोहम्मद अली जिन्ना। Negotiation over the question of representation continued, but all hope of resolving the issue at all party conference in 1928 disappeared when M.R. Jacker of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts of compromise। उसके बाद करें कि ये जो रिप्रेजेंटेशन की जो बातें थी, जो जो कुछ जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बातें थी, वो उसका मैटर कंटिन्यू रहा। लेकिन करें कि और पार्टी कॉन्फ्रेंस जो हुआ 1928 में, वो उसमें ये सारी आशाएं मुस्लिम्स कम्युनिटी की खत्म हो गई, जबकि जब हिंदू महासभा के जो M.R. जायकर थे, उन्होंने कहा कि हम इस तरह का कोई कंप्रोमाइज करने नहीं जा रहे हैं। मतलब कि हम कोई तरह के रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं देने जा रहे। तो जैसे ही ये बातें हुई, मुस्लिम कम्युनिटी को समझ में आ गया कि अब उनके लिए कुछ नहीं होने जा रहा है। When the civil disobedience movement started, there was this atmosphere of suspicion and distrust between community। और इसकी वजह से कहते हैं जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो एक अजब सी आशंका का माहौल था। डिफरेंट कम्युनिटी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। जो कि कांग्रेस से वे अलग थलग पड़ गए थे। इसलिए जब महात्मा गांधी ने यूनाइटेड स्ट्रगल के लिए एक लार्ज मास मूवमेंट लाने के लिए जब मुस्लिम्स को कॉल किया, तो उन लोगों ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslim as a minority within India। और बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स अपने मुस्लिम कम्युनिटी के स्टेटस को लेकर के वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। They feared that the culture and identity of minority would be submerged under the dominion of the Hindu majority। उन्हें इस बात का डर था कि उनकी कल्चर, उनकी आइडेंटिटी जो है, क्योंकि हिंदू यहाँ पे पॉपुलेशन में ज्यादा है, मेजोरिटी में ज्यादा है, तो उनकी आइडेंटिटी जो है वो उसमें दब के रह जाएगी। Now the next topic is the sense of collective belonging। आपने प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था nationalism in Europe, rise of nationalism in Europe। In that chapter you have studied about the collective belonging या feeling of collectiveness, how the feeling of collectiveness were created among the citizen of France। ठीक है, आपने पढ़ा था। अब इंडिया में भी हम लोग इसी चीज को देखेंगे कि इंडिया में कैसे लोगों का कलेक्टिव फीलिंग्स क्रिएट किया गया है। जस्ट यू आर वाचिंग ए पिक्चर इज देयर एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ लाला लाजपत बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, दिस इज द फिगर ऑफ बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, तिलक इज सराउंडेड बाय सिंबल्स ऑफ यूनिटी, द स्केयर्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ डिफरेंट फेथ, टेम्पल, चर्च, मस्जिद फ्रेम द सेंट्रल फिगर। आप देख रहे हो कि बाल गंगाधर तिलक है, पर देयर इज अ फिगर ऑफ टेम्पल, देन दिस इज द फिगर ऑफ मस्जिद एंड गुरुद्वारा, टेम्पल, मतलब हर तरह की यहाँ पे आप आइडेंटिफिकेशन। दिस फिगर इज ट्राइंग टू शो द यूनिटी ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी। आप देख रहे हो इसमें बहुत सारे
कम्युनिटी हैं और इनके इसमें अगल बगल में सारे सिंबल्स वगैरह बना दिए गए हैं, हर धर्म के सिंबल्स हैं, और इस तरह से यूनिटी को क्रिएट करने की कोशिश की गई है। So nationalism spread when people began to believe that they are all part of the same nation. When they discovered some unity that bind them together, but now, how did the nation become a reality in the mind of the people? Nationalism spread हुआ जब लोगों ने लोग अपने आप को एक नेशन का हिस्सा समझने लगे। ठीक है, जब लोगों में जब आप नेशन से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे जो लोगों को एक एक सूत्र में बांध सके। तो ये चीज हुआ जब लोग नेशन का हिस्सा बनने लगे, तब लोगों में यूनिटी डेवलप होने लगी। बट हाउ डिड द नेशन बिकेम ए रियलिटी इन द माइंड ऑफ द पीपल? ये ठीक है, नेशनलिज्म लोगों में आया तो लोग यूनाइट हो गए, लोग एक दूसरे से बाइंड अप हो गए। बट ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटी, रीजन और लैंग्वेज ग्रुप डेवलप a sense of collective belonging? Different group or different community के लोग, just we have studied that about the Dalit and about the Muslim community, they are alienated and they don't want to participate in the civil disobedience movement. So how such type of people united together and develop and develop a sense of collective belonging in them? So in the sense of collective belonging came partially through the experience of united struggles, but there were also a variety of cultural process through which nationalism captured people's imagination. History and fictions, folklore and song, popular print and symbols all played a part of making of nationalism. So the sense of collective belonging partially कैसे हुआ था? यूनाइटेड स्ट्रगल से। आपने आपने बहुत बार देखा, पहले तो 1857 का रिवोल्ट देखिए जिसमें लोग यूनाइटेड हुए थे, और वो लोगों का, हालांकि वो रिवोल्ट फेलियर हो गया था, बट दैट वाज द इंस्पायरेशन ऑफ मेनी पीपल। उसके बाद आपने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया। तो ये जो बहुत यूनाइटेड स्ट्रगल्स की वजह से बहुत सारे लोग जुड़े और उनमें कलेक्टिव बिलोंगिंग शुरू हो गई थी। लेकिन कुछ कल्चरल प्रोसेस के द्वारा भी लोगों में नेशनलिज्म डेवलप हुआ, जैसे कि हिस्ट्री था, एक इतिहास तो सबका कॉमन था, जो फॉकलोर हो गए, सॉन्ग्स हो गए, इसके अलावा पॉपुलर प्रिंट, सिंबल्स, ठीक है, ये सब जो थे ये लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट कर रहे थे। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे लोगों में नेशनलिज्म की भावना आई। आपने जर्मनी के बारे में पढ़ा था कि जर्मेनिया था, एक लेडी फिगर को लाया गया था हर जगह पर, एक जिससे कि लोग अपने आप को जोड़ सके। दिस इज द पिक्चर ऑफ भारत माता। आप देख रहे हो दैट दिस पिक्चर फिगर वाज मेड बाय अवेंद्रनाथ टैगोर इन 1905। In this figure, just we will see that mother figure is shown in the dispensing learning, food and clothing. The mala is in one hand, emphasizes her aesthetic quality. Yes, you will see there is in one hand there is a mala, and mala is showing that is her aesthetic quality. तो धार्मिक विश्वास को दिखलाते हैं। Abhinavanath Tagore, like Ravi Verma before him, tried to develop a style of painting that could be seen as truly Indians. इन लोगों ने इस तरह की पेंटिंग बनाई, उसके बाद भी पेंटिंग बनी थी। दिस पेंटिंग वाज मेड बाय अवेंद्रनाथ टैगोर। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन एज यू शो chapter is most often symbolized the figure of image. This helps create an image with which people can identify the nation. It was in the 20th century, with the growth of nationalism, that the identity of India came to be visualized, associated with the image of Bharat Mata. सारे कंट्री में एक फिगर और एक इमेज से नेशन को जोड़ा जा रहा है। इससे लोग अपने आप को, उस फिगर को देखकर लोग अपने आप को उस नेशन से जोड़ रहे थे, अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे थे। तरह की 20th सेंचुरी में नेशनलिज्म का ग्रोथ हो रहा था इंडिया में, और उसी समय भारत माता की तस्वीर बनाई गई थी।
ठीक है. द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. In the 1870, he wrote Vande Mataram as a hymn to be motherland. सबसे पहले फिगर बनाने वाले थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. यहाँ पे मैंने 1905 का बताया, लेकिन 1870 में ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक भारत माता की तस्वीर बनाई थी और एक उन्होंने वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो उन्होंने अपनी मातृभूमि पर लिखा था. Later it was included in his novel Anand Math and widely sung during the Swadeshi movement in Bengal. बाद में उसे आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो बुक है आनंद मठ, उसमें से लिख दिया गया था. और स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बंगाल में ये हमेशा हर जगह पे ये गाया जा रहा था, वंदे मातरम. Moved by the Swadeshi movement, Rabindranath Tagore painted his famous image of Bharat Mata. In his painting, Bharat Mata is portrayed as an aesthetic figure. She is calm, composed, divine, and spiritual. In subsequent years, the image of Bharat Mata acquired many different forms as it circulated in popular print and was printed by different artists. Devotion to his mother figure came to be seen as evidence of oneness religion. अब उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया भारत माता की तस्वीर, जो बिल्कुल एस्थेटिक थी, शांत, डिवाइन, स्पिरिचुअल दिख रही थी. उसके बाद के वर्षों में भी भारत माता की अलग अलग तस्वीरें बनाई गई और उसे प्रिंट के माध्यम से उसे अलग अलग सभी जगह पर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था ताकि लोग उसको अपने आप से रिलेट कर सके. तो इस मदर फिगर के प्रति जो डिवोशन था ये बाद में नेशनलिज्म में देखा गया. Ideas of nationalism also developed through a movement to revive Indian folklore. In late 19th century, Indian nationalists began recording folk tales sung by bards and they toured villages to gather folk songs and legends. आपने पढ़ा है क्लास प्रीवियस चैप्टर में रोमांटिसिज्म आपने पढ़ा था, उसमें इसी चीज को पढ़ा था ना कि हमारे हिस्ट्री के सहायता से जो हमारे प्राचीन कथाएं थी, प्राचीन जो गीत थे, संगीत थे, उन सब से भी लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई. तो भारत में भी ये चीज हुआ. इन तरह की लगभग लेट 19th सेंचुरी में नेशनलिस्ट जो थे वो जाकर के जो फोक सॉन्ग गाने वाले थे, फोक टेल्स जो बार्ड गाते थे, उनके गानों को उन लोग रिकॉर्डिंग करते थे और वो गांव से गांव घूम घूम करके वो कविताएं, वो गाने, वो स्टोरियां उनकी इकट्ठा करते थे. और these tales they believe give a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside culture. उनकी सोच थी कि ये जो स्टोरीज है, ये जो गाना है, ये जो है लोगों को उनके ट्रेडिशनल कल्चर्स को लोगों को याद दिलाएगा, ताकि जो कि ब्रिटिश रूल के वजह से डिस्ट्रॉयड हो चुका है. इट वॉज एसेंशियल टू preserve this folk tradition in order to discover one national identity and restore a sense of pride in one's past. ये जरूरी था कि ये फोक ट्रेडिशंस को इकट्ठा किया जाए, उनकी आइडेंटिटी, उनकी एक नेशनल आइडेंटिटी बनाई जाए और अपने पास्ट के प्रति लोगों में एक गर्व का एहसास हो कि हमारा पास्ट कभी कितना अच्छा था. बिकॉज अंग्रेजों ने तो उन्हें बिल्कुल उनको डिमोरलाइज करके रखे हुए थे. सो इन बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर himself began collecting ballads, nursery rhymes and mice and led to the movement for folk revival. और अगर आप बंगाल में देखें तो बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर खुद से बलाड से मिल कर और कविताएं, स्टोरीज, गाना, कहानियां, ये सब कलेक्ट करते थे और उसको और उन्होंने मूवमेंट के दौरान उसका इन्होंने यूज भी किया. इन मद्रास, Natasha Shastri published a massive 4 volumes collection for Tamil folk tales, the folklore of southern India. He believed that folklore was national literature. It was the most trustworthy manifestation of people's real thought and characteristics. मद्रास
में नतीशा शास्त्री ने 4 वॉल्यूम्स की एक तमिल फोक टेल्स की 4 वॉल्यूम बुक्स उन्होंने पब्लिश की थी, और उस बुक का नाम था फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। उनका मानना था कि फोकलोर जो है, उनका मानना था कि फोकलोर जो है वो लोगों के थॉट, लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स का के में बहुत ज्यादा चेंजेस ला देगा। ठीक है, बहुत ज्यादा चेंजेस ला देगा। तो बच्चों, अगला जो now we don't have much thing is left, so I want to explain it. As the national movement developed, nationalist leaders became more and more aware of such icons and symbols, unifying people and inspiring them a feeling of nationalism. During the Swadeshi movement in Bengal, a tricolor flag, red, green, and yellow, was designed, and it had 8 lotuses representing 8 provinces of British India and a crescent moon representing Hindu and Muslim. By 1921, Gandhiji had designed the Swaraj flag. It was again a tricolor, red, green, and white, and had a spinning wheel in the center, representing the Gandhian idea of self-help. Carrying the flag, holding it aloft during marches became a symbol of defense. So students, there is one question. यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि स्वदेशी मूवमेंट के ड्यूरिंग जो फ्लैग बना और महात्मा गांधी के जो फ्लैग बने, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे कि नेशनल मूवमेंट जैसे जैसे डेवलप हुआ, नेशनल लीडर्स जो थे वो ऐसे आइकॉन्स और सिंबल के प्रति और ज्यादा अवेयर हुए, ताकि लोगों को यूनिफाई किया जा सके, लोगों को इंस्पायर किया जा सके, लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग्स को डेवलप किया जा सके। स्वदेशी मूवमेंट के समय बंगाल में एक ट्राइकलर फ्लैग लाया गया था, जो कि रेड, ग्रीन और येलो कलर का था। ठीक है, रेड, ग्रीन एंड येलो कलर का डिजाइन किया गया था। इसमें 8 लोटसेस थे, 8 कमल का फूल था, जो कि ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करता था। साथ में इसमें क्रिश्चियन शुभ से के मून भी थे, जो कि आप पाकिस्तान के झंडे में देखते हो, तो वो था। और ये जो क्रिसेंट मून वाज रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम्स। देखो, आप देख रहे हो यहाँ एक तरफ तो 8 यूनाइटेड दिखाया जा रहा है, क्योंकि 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया को 8 लोटस के रूप में दिखा दिया गया, और एक क्रिसेंट मून दिखाया गया, जो कि हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को शो कर रहा है। लेकिन बाय 1921 महात्मा गांधी ने एक स्वराज फ्लैग बनाया। स्वराज फ्लैग का कलर जो था वो दैट वाज आल्सो ट्राई कलर, एंड द कलर वाज रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। आपने देखा कि इसके पहले जो कलर थे रेड, ग्रीन एंड येलो था, बट नाउ द कलर व्हाइट, येलो से व्हाइट चेंज हो गया, एंड हैड ए स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर। और सेंटर में क्या था? करखा था, जो जिससे वो सूत काटा करते थे। और ये जो है, ये गांधीयन आइडिया को रिप्रेजेंट करता था, ये स्पिनिंग व्हील, ताकि लोग सेल्फ हेल्प कर सके, मतलब कि वो करघा चला करके वो अपनी इनकम वो खुद कर सकते हैं। और इस फ्लैग को ले करके लोग जो है वो प्रोटेस्ट करते थे, मार्चेस निकालते थे, और ये उनका एक सिंबल बना हुआ है। Another mean of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history. By the end of 19th century, many Indians began feeling that still a sense of pride in the nation. Indian history had to be thought about differently. The British saw Indian as a backward and primitive. Okay, students, now time is not more. We have just going to end the class. So this topic I will explain tomorrow. This is and the conclusion of the topic. And today I will send the question answer of the chapter Nationalism in India. Okay. So students,
हु मेड द फर्स्ट फिगर ऑफ भारत माता? एनीवन? सबसे पहले किसने बनाया भारत माता की फिगर? कोई तो बोलो। इन 1870। किसने बनाया बच्चा? नो रिस्पॉन्स। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और उसके बाद किसने बनाया 1905 में? रविंद्रनाथ टैगोर। पूना पैक्ट किसके किसके बीच साइन हुआ था? बोलो। महात्मा गांधी एंड? चलो ठीक है, टाइम ओवर हो रहा है। जस्ट आई एम एंडिंग माय क्लास।